السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ دن رمضان کے ہمیں نصیب فرمائے، ان کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے، اس لیے کہ یہ دن پتہ نہیں دوبارہ ہماری زندگی میں آ سکیں یا نہیں۔ رمضان ملنا بڑی خوش بختی ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام کسی کی نیکیوں کو اگر گنا کرتے تھے تو وہ اس طرح سے کہ کس کو کتنے رمضان ملے، تو لہٰذا یہ دن ہیں غور و فکر کرنے کے، خود کو فارغ کر لینے کے، اپنی راتوں کو آباد کرنے کے، اور دوسرے کاموں سے تھوڑی دیر کے لیے فرصت لے لینے کے۔ سارا سال ہم بے روح پھیکی عبادات کرتے ہیں، یہ دن ہے خشوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، یہ رب کو منانے کے دن ہے، اس کے آگے آنسو بہانے کے دن ہے، توبہ اور استغفار کرنے کے دن ہے۔ جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اس نے جنت میں ہی جانا ہے اور آگے معاملہ بڑا آسان ہے، تو اس کو نجات کی زیادہ فکر نہیں رہتی، پھر آنسو بھی کم ہی بہتے ہیں، دل مشکل سے ہی روتا ہے پھر، اور فکر بھی اتنی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو، یا جس کو جنت کی ضمانت مل چکی ہو، یا جس کے لیے آسمان سے کوئی پروانہ آ چکا ہو کہ ہم بخشے بخشائے ہو گئے، جہنم سے آزاد ہو گئے۔ پھر کیسے ہم میں سے کوئی آرام سے بیٹھ سکتا ہے، اور وہ بھی ان دنوں میں جن میں رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے اور چانس بھی ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی کے گناہ بخشوا سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تھا تو کسی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ دنیا کے جانے پر رو رہے ہیں؟ فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، تمہاری یہ دنیا مجھے نہیں رلاتی، میں تو گناہوں کے بوجھ سے، نیکی کی کمی سے اور منزل کی دوری سے روتا ہوں۔ کیا فکر تھی ان کو کہ گناہ بہت زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، اور منزل یعنی جنت بڑی دور ہے۔ فرماتے میں اس لیے روتا ہوں کہ کئی قیامت کے دن پل صراط سے نہ گر جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت سے رہ جاؤں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کتنی فکر تھی ان کو کہ اتنی حدیث کی خدمت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا کے بھی، اور پھر بھی ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میری نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں اور منزل بڑی دور ہے۔ تو یہ فکر ہمیں لگانی ہے، ایسی سوچ ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے کہ کہیں پل صراط سے میں پار نہ ہو سکی تو کیا ہوگا، کہیں میری نیکیاں اس دن گھٹ گئیں تو میرا کیا ہوگا، کہیں میرے گناہوں کی بخشش نہ ہو سکی تو میرا کیا ہوگا، کہیں میرا رب اس دن مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، کہیں میرے گناہوں نے میری نیکیاں چاٹ لی ہوں تو کیا ہوگا، کہیں میرے لیے اگر یہ اعلان ہو گیا کہ میں ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا، کہیں اگر میرے رب نے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں نہ اس دن لیا تو میرا کیا ہوگا، کہیں میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں آ گیا تو میں کیا کروں گی۔ کبھی یہ سوچ بھی دل میں لانی چاہیے۔
اور اگر رات کے وقت میں تنہائی میسر آ جائے اور اس تنہائی میں یہ سوچ لیں، جس وقت کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہ ہو، فون بھی دور رکھ دیں، اس وقت خیالوں میں خود کو حشر کے میدان میں کھڑا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہو اور میں کھڑی ہوں، اور پھر سوچتے چلے جائیں کہ وہاں کیا حالات ہوں گے، خود کو وہاں کھڑا ہوا امیجن کریں، پھر دیکھیں کیسے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگتی ہے، پھر دیکھیں کیسے غم سے دل پھٹتا ہے، پھر وہ جو توبہ دل سے نکلتی ہے وہ روکھی سوکھی نہیں ہوتی، وہ دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، رحمان کے آگے آوازیں دب جائیں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، صرف ہمس ہوگی، ایک سانس کی آواز ہوگی، اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں، تب میرا کیا حال ہوگا؟ تو تب وہ جو توبہ ہے وہ ہوگی جو بے قرار ہو کے دل سے نکلے گی، تب وہ بے چینی آئے گی جس سے دعا میں بھی شدت ہوگی، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح کی تسبیح نہیں ہوگی، پھر اس وقت جب دل سے پکار نکلے گی تو وہ ہے وہ پکار جو اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے، پھر وہ جو دعا ہوگی اس بے چین دل کی، یہ ہے دعا جو قبولیت کی منزلیں پاتی ہے، پھر دل میں یہ جذبات ہوں گے کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اب خالص ہو جانا ہے اس رب کی خاطر، پھر زندگی کو بدلنے کے ارادے ہوں گے، پھر بنے گی وہ سوچ کہ بس اب من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہے، ایسی راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اور ایسی ایک توبہ بھی ساری زندگی کے گناہوں کو مٹا سکتی ہے، اور اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے، آج کل جتنا بھی آپ وقت تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں گزار سکتے ہیں وہ گزاریں، کیونکہ ہم یوزلی سارا سال تو ہجوم میں اور مجلسوں میں اور گپ شپ میں اور دوستوں کے درمیان اور سب کے درمیان رہتے ہیں، یہ مہینہ ایک آتا ہے کہ خود کو تھوڑا سا سیکلوڈ کریں، تھوڑا سا غور و فکر، اور یہی باتیں ہیں جو غور کرنے کی، ٹھیک ہے سارا سال نہیں وقت ملا تو غنیمت ہے یہ وقت جو اب مل گیا، سب محفلوں کو کچھ عرصے کے لیے خیر بات کہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ افطار پارٹی پہ پہنچے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک جگہ دعوت پہ پہنچے ہوں، ہر میٹنگ ہر مجلس ہم نے اٹینڈ کرنی ہو، تو ہمارے اسلاف اپنی تنہائیوں کو بہت محبوب رکھتے تھے کہ تنہائی ہو اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو، تو اس کی لذت کو ان دنوں میں محسوس کریں، آج ہم جو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم، جس کو امام ابن القیم نے اسم اعظم قرار دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں، یہ وہ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی باقی جو صفاتی نام ہے ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور یہ ہے الحی القیوم، اور علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ، الحی اور القیوم، یہ تین ہی نام ہیں
जिनके बारे में सबसे ज्यादा राय हैं कि ये ही इसमें आजम है। और ये भी कि आप जानते हैं इसमें आजम के जरिए जो दुआ की जाए, इसमें आजम क्या होता है? जो अल्लाह ताला का ग्रेटेस्ट नेम है, अजीम नाम, उसके जरिए जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती। तो बाज शवाहिद से भी ऐसा मिलता है, बाज अहादीस से, कि यही अल हय्युल क़य्यूम ही अल्लाह ताला का इसमें आज़म है। आयतल कुर्सी में भी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया कि वो अल हई है और अल क़य्यूम है। सूरह आल इमरान के भी शुरू में ही आया, अल बकरा में मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह सूरह ताहा में आयत 111 में भी यही नाम आया, वआनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, कि उस दिन चेहरे झुक जाएंगे हई और कयूम के आगे। तो ये हैं तो दो नाम जो अलग अलग हैं, तो उनका अपना माना है, और जब दोनों इकट्ठे मिलके आए तो फिर भी एक माना देते हैं, जो तीसरा माना होगा। तो याद रखिए, कुरान करीम में जब भी अल्लाह ताला के दो नाम इकट्ठे आए तो उनके अपने अपने माने भी होंगे, और मिल के दोनों के भी एक माना, एडिशनल माना बनेगा। तो आयतल कुर्सी जैसे कुरान करीम की अजीम तरीन आयत है, इसका भी स्टार्ट अल हय्युल क़य्यूम है। यानी अल्लाह ताला ने इसमें भी अपना तारुफ इसी से करवाया कि वो अल हई है। हई, सबसे पहले इसको देखें, हई हयात से है, हया, और वो हयात लाइफ। और जैसे कि अल्लाह ताला के हर नाम में परफेक्शन है, तो उसकी हयात में भी परफेक्शन है। याद रखिए, अल्लाह ताला के नाम उस तरह से जामिद नाम नहीं है जैसे कि हमारे नाम होते हैं। यानी किसी का नाम अगर मसलन आ, साजिदा है, तो जरूरी नहीं कि वो बहुत सजदा करने वाली हो, बस उसका नाम साजिदा रख दिया। माँ बाप इसलिए रखते हैं ताकि हो सकता है उसके अंदर ये क्वालिटीज आ जाएं। लेकिन अल्लाह ताला के जो नाम हैं वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के हर नाम का एक मीनिंग है, और उसमें एक क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है, सिफत है, जो अल्लाह ताला में मौजूद है। और वो सिफत परफेक्शन की है। अल हई में परफेक्शन है, कोई और अल हई नहीं हो सकता, इसलिए कि किसी की हयात परफेक्ट नहीं है। देखिए हमारी जिंदगी कैसी है, हमारी जिंदगी के एक वक्त ऐसा था कि हम में से कोई भी नहीं था, फिर हम वजूद में आए तो हमारी जिंदगी शुरू हुई। लेकिन अल्लाह ताला को जब हम कहते हैं अलहई, तो ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी कभी शुरू हुई। वो ए, वो अल अव्वल है और वो अल आखिर है। हमारी तो जिंदगी वो है ना कि ऐसा भी वक्त आएगा जिसमें हमारी जिंदगी नहीं होगी, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त नहीं है जब वो ना हो, और कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जब वो नहीं था। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला की जो जब हम अल्लाह ताला की हयात के बारे में बात करते हैं तो वो कंप्लीट है। और इसी तरह जब हम ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला की सिफात है, मसलन है अल्लाह ताला की सिफात है कि वो सिफत है अल्लाहु अकबर। जब हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, तो हम इसको ऐसे समझें अगर कि भाई जैसे अल्लाह ताला फलां से बड़ा है, फलां से बड़ा है। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब मैं कहूँ कि खालिद सबसे बड़ा है, तो आप समझेंगे कि जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनमें खालिद एक बच्चा है जो शायद दूसरों से, दूसरे 5-5 फुट के हों, खालिद 6 फुट का हो, तो सबसे बड़ा हो गया। अब आप उनसे रिलेशनशिप में कह रहे हैं कि उनसे बड़ा है, ठीक है। अब वो 4 इंच भी बड़ा हो गया तो सबसे बड़ा हो गया। ये चीज मखलूक में तो आप कह सकते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह ताला की बड़ाई की बात करेंगे तो मखलूकात में उस नौइयत की बड़ाई है ही नहीं। यानी जब अल्लाह ताला की बड़ाई होगी ना तो वो और है, और मखलूक की बड़ाई है ही और डिफरेंट है।
जैसे हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला के अर्श की मिसाल पूरी कायनात के मुकाबले में। अब कायनात कितनी बड़ी है, अरबों खरबों साल की है ये सारी कायनात, जिसमें सितारे सैयारे सब शामिल हैं। ये पूरी कायनात अल्लाह ताला के, बल्कि कुर्सी के मुकाबले में पहले देखते हैं। अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे है जैसे लकोदक सहरा के अंदर, वो लंबा चौड़ा सहरा है, दुनिया का सबसे बड़ा सहरा ले ले, उसमें एक छल्ला पड़ा हुआ है। उस छल्ले को जो निस्बत सहरा के साथ है, इन रिलेशनशिप टू द डेजर्ट है, वो ही निस्बत इस कायनात की अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे। वो अल्लाह ताला को जब हम कहते हैं ना अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आसमानों से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, हम ऐसे सोचना शुरू हो जाए अल्लाह फलां से बड़ा। नहीं, उसकी बड़ाई का अंदाजा ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो सिर्फ दर्जे में डिफरेंट नहीं है अल्लाह ताला की सिफात, कि हम कहेंगे इंसानों की जिंदगी ऐसे, अल्लाह ताला की जिंदगी नहीं, सिर्फ दर्जे में नहीं है, एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। ये नहीं है कि इंसान अगर 1 नंबर पे है मसलन खड़ा हुआ, तो अल्लाह ताला ट्रिलियन नंबर पे है, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ताला का गुस्सा, इंसान का गुस्सा 1 नंबर पे है, तो अल्लाह ताला का ट्रिलियन, ऐसा नहीं है। ये दर्जे का इख्तलाफ होता है। ठीक है, याद रखिए अल्लाह ताला की जो भी सिफत करेंगे ना, उसमें दर्जे का नहीं इख्तलाफ सिर्फ है, वो नौयत ही डिफरेंट है, चीज ही डिफरेंट है। अल्लाह ताला की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो हम कहें ना कि अगर कि 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत है, तो वो एक पता नहीं समझने के लिए चलो कह देते हैं ऐसे, मगर अल्लाह ताला की मोहब्बत को हम डिफाइन इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी नेचर ही डिफरेंट है, वो नौयत डिफरेंट है। हर चीज जो अल्लाह ताला के बारे में बयान होगी ना, वो मखलूकात में हो ही नहीं सकती, इसलिए कि लईसा कमिस्लिही ही शई, उस जैसी कोई चीज नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जितना प्यार माँ करती है, माँ, एक माँ क्या 70,000 माएँ भी जुड़ जाएं, 70 लाख भी हो जाएं, 70 करोड़ भी हो जाएं, उनका प्यार अल्लाह ताला के प्यार के जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी सिफात है वैसी किसी में भी नहीं हो सकती। इसी तरह हयात है कि जैस हम कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, क्या आपको थोड़ा सा तो आपके जहन में आए कि उसकी हयात कैसी होगी, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो सकता। फिर देखिए ना, किसी भी मखलूक की और हमारी भी एक वो हयात होती है कि जब हम बच्चे थे, कमजोर थे, फिर जवान हुए, फिर ताकतवर हुए, फिर एक वक्त आ जाएगा, फिर बुढ़ापे में जाएंगे तो फिर कमजोर हो जाएंगे। तो हमारी लाइफ में इस तरह ना पर इम्परफेक्शन है, कभी कमी आती है, जितनी जिंदगी है भी उसमें भी कोई कमी वाली है, फिर थोड़ी ऊपर जाते हैं, फिर डाउन द हिल है, इस तरह है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स। जबकि उसकी हयात परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जिंदगी तो खत्म हो जाती, लेकिन उसकी कभी खत्म नहीं। तो आज भी अगर हमारी जिंदगी चल रही है, तो वो भी उसी के चलाने से चल रही है। ठीक है, तो हमारी जिंदगी, इसका मतलब है कि ऐसी नहीं कि इंडिपेंडेंटली खुद एग्जिस्ट कर सकते हो हम, बल्कि वो हमें कायम रखे हुए है। ठीक है, तो वो जिंदा है, और वो अलहई में ये आ गया, और हयात को हम नहीं डिफाइन कर सकते, ये समझ लें आप। अ, अल्लाह ताला की हयात वैसी है जैसी कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम जितनी भी बातें मैंने आपको बताई कि हमारी ख़त्म हो जाती है, उसकी नहीं ख़त्म होती, हम एक दिन थे, हम एक दिन नहीं होंगे, फिर इस तरह हमारी ज़िंदगी अप एंड डाउन है। कभी हम मिसाल के तौर पे हमारी ज़िंदगी ऐसे है कि जिसके अंदर हर वक्त हमें, हर दिन हमें खाने की भी ज़रूरत है, पीने की भी ज़रूरत है, सांस लेने की भी ज़रूरत है, सोने की भी ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, थकावट भी हमें होती है, कई कमियां हमारी ज़िंदगी की है ना, कभी बीमार होते हैं, कभी डिप्रेस होते हैं, कभी एंग्शियस होते हैं, कभी सुस्ती आती है, कभी लाचारी आती है, कभी बेबसी होती है हमारी, कभी उसमें गम होता है हमारी ज़िंदगी में। तो यानी हमारी देखिए, हमारी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें सारी लगी हुई हैं। हम इस
زندگی میں ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی ایگزسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کی حیات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیں کمیاں، یہ ہیں ڈپینڈنسیز، اس کی حیات میں کوئی ڈپینڈنسی نہیں ہے کسی پہ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اب دیکھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرو، بھروسہ کرو اس کے اوپر جو حی ہے، جو حی ہے، لا یموت، تو وہ ایسا ہے جو کہ یعنی ہمیشہ زندہ ہے، وہ لا یموت، وہ جس کو موت نہیں ہے اسی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں نا۔ دیکھیں، جس کو اونگ آ گئی ہو، نیند آ گئی ہو، وہ بھی موت کی بہن ہے نیند، لیکن اونگ آ گئی ہو، جو تھک جاتا ہو، اس کے اوپر آپ بھروسہ کیسے کریں؟ کیونکہ آپ نے اس کے اوپر بھروسہ کر کے اپنا کام اس پہ چھوڑ دیا اور وہ تو سو گیا، آپ اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس لیے قابل بھروسہ ہے، اور اسی لیے وہ اکیلا الہ ہے کہ وہی الحی ہے اور القیوم ہے، جو کل پیدا ہوا اور پرسوں مر جائے گا، وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کسی اور میں نہیں آ سکتے، جو کوئی بھی اپنے اندر ثابت نہیں کر سکتا، نہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کے، ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور کوئی اپنے معبودان باطل کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوئے اور نہ ہی کبھی مریں گے، نہ یا مرے ہی نہیں ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، وہ تو خیر ویسے ہی جیسے پتھر ہیں، وہ تو بے جان ہی ہیں، لیکن جو چیزیں کبھی جاندار تھیں بھی، وہ بھی ہمیشہ تو نہیں رہتی، وہ بھی فوت ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات صرف وہ ہے کہ جس کی حیات پرفیکٹ ہے، اس کی حیات کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اس کی حیات میں اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہے، اس کی حیات ہمیشہ ہے۔ اور القیوم کیا ہے؟ القیوم اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی قائم بنفسی ہی، یعنی وہ قائم ہے، اس کی ذات اپنے آپ میں وہ خود قائم ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی، کہ سبحان اللہ کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یا اس کا کوئی ساتھی ہو، یا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو جو اس کی ذات کو قائم رکھے۔ جیسے ہمیں قائم رہنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ آکسیجن کی ضرورت ہے، کھانے کی، پینے کی، ایک خاص ٹیمپریچر کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ فریزنگ ہو جائے تو مر جائیں گے، زیادہ گرمی ہو جائے تو مر جائیں گے۔ تو ہمیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ہمیں محتاجی ہے، احتیاج ہے، جس پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں تو ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کو اپنی حیات کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود قائم ہے، یعنی کوئی اس کو قائم نہیں کیے ہوئے۔ جیسے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا نا، ہماری ضروریات پوری کر کے اس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، ہمیں سسٹین کیا ہوا ہے، لیکن وہ سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو بھی قائم کرتا ہے، یعنی قائم علی کل نفس، ہر ایک نفس کو قائم رکھنے والا، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اگر وہ نہ ان کو قائم رکھے وہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اس نے رکھا ہوا ہے قائم تو ہی رہ سکتے، جب بھی تو اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ نہ قائم رکھے تو تم تو خود ایگزسٹ بھی نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایوہ الناس، اے لوگو، کافر، مومن، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جتنے بھی انسان ہیں، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو نہیں کسی کی ضرورت ہے، تعریف والا۔ تو تم تو فقراء ہو، تمہیں تو اپنی ایگزسٹنس کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، اور چیزیں تو چھوڑیں، جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم تو سوچتے ہیں شاید یہی ہماری صرف ضروریات ہیں، نہیں، ہماری ضروریات اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے ان کو کبھی مانگا نہیں، اس لیے کیونکہ ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، یا ہمیں بن مانگے ہی مل چکی ہیں۔ مثلاً ہے ہمارا معدہ کام کرتا رہے، ہم نے یہ نہیں کبھی مانگا،
हमारे किडनीज, हमारा लिवर, हमारे दिल काम करता रहे, हमने नहीं कभी मांगा। हमारे अंदर की कितनी चीजें की जरूरत है, आयरन है, कैल्शियम है, हमने नहीं कभी मांगा अल्लाह ताला कैल्शियम दे दे, आयरन दे दे मुझे, ये विटामिन्स दे दे। कभी नहीं मांगे। अल्लाह ताला ने हमारी ये जरूरियात पूरी करी हैं, बिन मांगे ही करी हैं। देखने की, सुनने की, सोचने की, बोलने की कुव्वतें हमने मांगी ही नहीं, बिन मांगे ही मिल गई। तो अल्लाह ताला हमारी जात को कायम रखने के लिए जो भी, जितनी भी जरूरियात है, हर सांस को हम मांगते नहीं अल्लाह आप सांस दे दे, अल्लाह आप सांस निकाल ले, अब आप सांस आ जाए, अब चली जाए। हम नहीं कभी मांगते, बिन मांगे मिल रही हैं। तो हम तो बहुत ज्यादा मोहताज हैं, बहुत नीडी हैं। और अल्लाह ताला हमारी हयात को कायम रखे हुए है, हमारी नीड्स को पूरी कर रहा है। फिर भी हमारी जुबान के ऊपर शिकवे रहते हैं कि हमारी अब तो दुआएं नहीं कबूल हो रही। कितनी सारी चीजें हैं जो अल्लाह ताला तुम्हारी बिन मांगे ही तुम्हें देता जा रहा है। तो जितनी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं ना इस कायनात में, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे जमीन हो आसमान है, चाहे जन्नत जहन्नुम है, चाहे जिन्नात हैं, चाहे इंसान है, चाहे शजर, चाहे हजर, चाहे कुछ भी है, हर चीज अल्लाह ताला के चलाने से चल रही है, अल्लाह ताला के उसको जिंदगी देने से और उसको कायम रखने से जिंदा है। वरना वो जिंदा नहीं रह सकती, यानी हम जिंदा नहीं रह सकते अल्लाह ताला अगर हमारी जिंदगी को कायम ना रखे तो ये दो नाम, अल हई और अल कय्यूम, इन दोनों नामों को आप देखें तो इनके अंदर अल्लाह ताला की दूसरी सिफात भी आ जाती हैं। अल्लाह ताला की जात अल हई है, यानी परफेक्ट जिंदा है, इसीलिए तो वो असमी है, अल बसीर है। देखिए अब मिसाल के तौर पे कोई जिंदा हो लेकिन उसका जहन ना काम करता हो तो उसकी जिंदगी परफेक्शन वाली नहीं है ना। एक इंसान है वो देख ना सकता, उसकी जिंदगी परफेक्शन वाली नहीं। अल्लाह ताला परफेक्ट है, यानी कि जितनी भी खूबियां वो उसकी जिंदगी में हैं, वो उसकी हयात में हैं, जिसकी वजह से वो परफेक्शन के लेवल पर है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला के इन नामों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल वक्त में भी ये दुआ किया करते थे। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, इब्नुल क़य्यिम ने फरमाया कि कोई बीमारी हो या परेशानी हो, मसले मसाइल हो, तो इस दुआ के साथ अल्लाह ताला को पुकारें और इससे दुआ कबूल होगी। दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम भी दुआ ये मांगा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, कि ए हई और ए कय्यूम, तेरी रहमत की वजह से, तेरी रहमत के साथ, यानी अल्लाह ताला को उसकी रहमत का वास्ता दे रहे हैं कि मैं तेरी रहमत का तुझे वास्ता देता हूँ कि अल्लाह, मैं तुझे तेरी रहमत के वास्ते से तुझसे फरियाद करता हूँ, है जिंदा और है कायम रहने वाले और कायम रखने वाले। अस्तगीस में डेस्परेशन है ना, कि इंसान में बहुत मोहताज हूं, मैं फरियाद करता हूं, मैं बेग करता हूं तुझसे, तेरी रहमत के साथ सवाल करता हूं कि क्या कर दे। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहू, मेरे सारे ही अफेयर्स, जितने मेरे काम हैं उनकी टेक केयर कर ले, उनकी इस्लाह कर दे या अल्लाह, यानी मेरे सारे ही कामों को अच्छा कर दे। अब जितने आपके काम हैं आप खुद सोच लें। ये दुआ इसलिए बड़ी प्यारी दुआ है, और मैं खुद भी इसको उस वक्त ज्यादा मांगती जिस वक्त के बहुत सारी दुआएं होती हैं और वक्त कम हो, तो फिर सारे ही कामों को या अल्लाह, जो मुझे याद है, जो नहीं याद है, जो मुझे पता है और जो नहीं पता है, अल्लाह मेरे सारे ही कामों को तू इस्लाह कर दे, उनको सही कर दे या अल्लाह ताला, कि यानी चाहे वो औलाद के हैं, चाहे वो रिस्क रोजी के हैं, चाहे वो सेहत के साथ मुतल्लिक हैं, चाहे वो ईमान के साथ हैं, दीन के साथ हैं, आखरत के मामलात हैं, जितने भी मामलात हैं मेरी जिंदगी के या अल्लाह ताला, तो उनको ठीक कर दे। और फिर वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, अल्लाह ताला मुझे एक आंख के झपकने के बराबर भी मुझे मेरे ऊपर ना छोड़ना। मैं तो लागर, मैं तो लाचार, मैं तो कमजोर, मुझे मेरे ऊपर ना छोड़ना अल्लाह, तू मेरी खुद ही टेक केयर कर ले। कितनी प्यारी दुआ है। और अगर इंसान इस दुआ को समझ के मांगे
तो कितना बड़ा माना है इसमें। आप देखें, मैंने आपको बताया ना, अल हय्य और अल कय्यूम, यानी 96 नाम अल्लाह ताला के इसके अंदर समराइज होके आ जाते हैं। अल हय्य और 97 और 98 तो ये खुद हो गए, और 99th नाम अल्लाह ताला का अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो वो तो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। तो इसलिए इस नाम को बहुत प्रेशियस समझे, और इस नाम के साथ आप अल्लाह ताला को पुकारिए। ये तो आज की दुआ भी हो गई, और आज मैं आपको जो जिक्र बताने वाली हूँ मुख्तसर सा जिक्र है, मगर माने के समंदर है इसमें। क्योंकि जो अस्कार मैं आजकल आपको बता रही हूँ, ये वो अस्कार हैं जिनके जरिए आप, यानी पहले आप इन अस्कार को करेंगे, फिर उसके बाद आप दरूद शरीफ और फिर दुआ करेंगे। तो आज का जो जिक्र है, वैसे भी आप मांग सकते हैं, वैसे भी आप ये जिक्र कर सकते हैं, लेकिन दुआ से पहले लाजमी करें, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लु। तो बंदा कहता है ना, या अल्लाह तेरी तारीफ है सारी की सारी, सारी तारीफ तेरी, अल्हम्द में सारी तारीफ, और लका पहले आ गया ना, सिर्फ तेरे लिए ही है, यानी किसी और के लिए नहीं है सारी तारीफ, सिर्फ तेरे ही लिए, सिर्फ तू ही इस लायक है सारी तारीफ। और फिर कुल्लू हो आ गया, तो सारी की सारी आ गई, सारी तारीफ तेरे लिए। क्यों? इसलिए कि परफेक्ट तू है ना, तू इला है, तेरी जात परफेक्ट, तेरे अफाल परफेक्ट, तेरे अहकाम परफेक्ट, तेरे फैसले परफेक्ट, हर तेरी जो बात है वो परफेक्ट है। लेकिन आप बताएं, अगर हम ये समझते हैं कि इस पे इतराज और उस पे इतराज, तो फिर जाहिर ही बात है, फिर तारीफ तो ना रही। और वाकई देखें भी कि हम अपने अंदर झांक के कि हम अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि कुल्लू सारी तारीफ तेरे लिए अल्लाह, तेरे सिवा किसी के लिए सारी तारीफ नहीं हो सकती, सारी हमद का मुस्तहिक तू है। तो वाकई आपने मुस्तहिक समझा वह अल्लाह सुब्हाना व ताला को अकेले मुस्तहिक समझा है? या आप समझते हैं कि नहीं, उसके फैसले तो इतने सही नहीं है, और जो फैसले मैं समझती हूँ वो सही हैं, या जो उसने अहकामात दिए हैं उनके ऊपर तो मुझे इतराज़ आते हैं, और मुझे लगता है कि ये तो अस्तगफिरुल्लाह, ये सही नहीं है, या ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और उनके लिए मेरे दिल के अंदर ऐसे हुक्मों के लिए, ऐसी बातों के लिए, अल्लाह ताला के ऐसे एक्शंस के ऊपर मेरे दिल में कोई यानी तंगी है। तो फिर तो सारी तारीफ हम नहीं कह सकते, तो ये वही कह सकता है, और उसी की बात सच होगी जो वाकई अल्लाह ताला के हर फैसले और हर बात, हर हुक्म, हर उसके एक्शन और हर उसकी सिफत, उसके ऊपर ये समझता है कि वही काबिल तारीफ है। व इलैका यर्जुल अमरु कुल्लू, और तेरी तरफ ही लौटती है हर किस्म की बात, हर किस्म का अमर, यानी दुनिया का हर फैसला, सारे अमूर तेरी तरफ से हैं। तेरी तरफ लौटते हैं का मतलब तेरी तरफ से हैं, तू ही करता है, तेरे अलावा किसी का जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं है। सब चीजों पे ऑर्डर तेरा चलता है, किसी और का नहीं चलता। और क़यामत के दिन भी सारे फैसले तू ही करेगा, हर फैसला तेरी तरफ जाता है। कोई और ना हिसाब ले सकता है, ना कोई और तेरे अलावा फैसले कर सकता है, तो हर मामला तेरी तरफ ही लौटता है। तो ये बहुत ही ऐसा खूबसूरत जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला की बहुत तारीफ है। और मैंने आपको बताया था, जब अल्लाह ताला की तारीफ की जाए तो वो खुश होता है, और वो खुश होके अता फरमाता है। तो ज़्यादा अल्लाह ताला की तारीफ करें, और फिर सोच समझ के भी करें। और उम्मीद है आप लोग आजकल कुरान करीम को का दौर कर रहे होंगे। जब कुरान करीम का दौर करें तो सिर्फ ये नहीं कि बस हमने दौरा कुरान करना है और उसको ख़त्म करना है और बस हो गया हमारा दौरा कुरान। वाकई कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में साथी बनाने के लिए अब से आप सोच लीजिए कि इसको मैंने अब सिर्फ रमज़ान में नहीं, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी का मैंने साथी बना लेना है। और इसके साथ ही मैंने रमज़ान के बाद भी अपना सफ़र जारी रखना है। अभी आप गो थ्रू कर रहे हैं सिर्फ कुरान से, अब और डेप्थ में मैंने जाके इसको समझना है। तो कुरान करीम को जब भी सुन रहे हो तो इतनी मोहब्बत और शौक के साथ सुने कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। याद रखिए, जो भी
हम इस वक्त कर रहे हैं, इन दिनों में कर रहे हैं, इनमें अपनी नीयतों को ज़रूर खालिस रखिएगा कि ये सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह ताला तू खुश हो जाए। ना किसी को दिखाना है कि मैंने कितने कुरान ख़त्म कर लिए, ना किसी को बताने की ज़रूरत है, ना कितनी मैं तरावी कर रही हूँ, ना कितने के लोग मुझे देख रहे हैं मैं 8 पढ़ के जा रही हूँ, 4 पढ़ के जा रही हूँ, 20 पढ़ती हूँ। कुछ भी किसी के लिए नहीं, ताकि ये अमल कबूल हो जाए। अमल करना ठीक है वो भी मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं जितना इसको संभालना मुश्किल होता है। इसके संभालने की भी फिक्र करिएगा, ये ना हो कि ये यहीं ज़ाया हो जाए। तो इसको जितना भी आप छुपा के रख सकते हो, इसको छुपा के रखिएगा, ताकि सिर्फ अल्लाह ताला को पता हो और आपको पता हो। और ख़ास तौर पे जब सदका करने लगे तो उसको तो बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश किया करें, अनलेस कि आपको ये हो कि मैं करूँगी तो शायद किसी और को ख्याल आ जाए, या मैं शुरुआत करूं तो कोई और भी मुझे मेरी देखा देखी वो भी कर ले, फिर तो उसका भी अजर आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और सदका ये सोच के करिएगा कि सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ख़त्म करता है, ठंडा करता है। तो अगर मेरी गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है, मुझसे गुस्से में है, तो अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, इसलिए सदका कीजिएगा। और जैसी नीयत करेंगे उसी तरह अजर मिलेगा। जिस नीयत से जो अमल किया होगा उसी मुताबिक उसकी जजा भी होगी। अगर लोगों के लिए किया होगा तो लोगों को अल्लाह ताला उनके हवाले ही कर देगा क़यामत के दिन के, जाओ फिर जाके उन्हीं से ले लो जिनके लिए तुमने किया था। और अगर आपने ये इसलिए किया कि अल्लाह ताला तेरा गज़ब ठंडा हो जाए, मेरे ऊपर ना हो, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये आपको मिलेगा। और एक एक अमल में मल्टीपल नीयत्स भी करें, कि नियतें करते जाएं ऐसे कि ये भी मुझे मिल जाए, इससे ये भी मिल जाए, और इसमें कोई हरज नहीं, ये कोई लालच नहीं, बल्कि ऐसा लालच होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे ये भी अता कर देना, ये भी अता कर देना। और जितनी चीज़ों की आप नियत करेंगे, अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, वो सब अता कर सकता है। और उसको परवाह नहीं है, वो बेनियाज है, और वो सब कुछ दे सकता है। जहाँ तक हमारा गुमान भी नहीं जाता, वो सब कुछ हमें अता कर सकता है। कोई चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं है। ये उसके लिए नहीं है, हमारे लिए ज़रूर हो सकता है कि ये चीज़ नामुमकिन हो, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। और हम उससे हमेशा उसकी रहमत का ही सवाल करते हैं, जैसे कि इस दुआ में हमने किया। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.